हेलो गाइस, वेलकम टू 52nd एपिसोड ऑफ ग्लोबल एंड इंडियन अफेयर्स। तो चलिए 23 जून के करंट इवेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला इवेंट क्या है हमारा? सबसे पहला इवेंट है यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे 2023। कब ऑब्जर्व किया गया? 23 जून को। ठीक है, तो 23 जून को यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे ऑब्जर्व किया गया। The United Nations Public Service Day is celebrated annually on 23rd June. The day is recognized by the UN to create awareness among people about the significant role of public services in the development of a country. ठीक है, so UN ने ही basically इसको establish किया था. After the United Nations General Assembly Resolution 57/277 was established in 2002, the first United Nations Public Service Day was established on 23rd June 2003. So UN ने इसको कब establish किया? 2002 को. कब फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व हुआ? 2003 को. In 2016, the program underwent a review to align its objectives with the 2030 Agenda for Sustainable Development. It is organized annually by UNDESA, United Nations Department of Economic and Social Affairs, in collaboration with the host country. ठीक है, हमको क्या ध्यान में रखना है? यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे कब ऑब्जर्व होता है? 23 जून को. किसने एस्टेब्लिश किया? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. कब एस्टेब्लिश हुआ? 2002 को. कब फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट हुआ? 2003. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे, इंटरनेशनल विडोज डे 2023. इंटरनेशनल विडोज डे 2023 कब ऑब्जर्व होता है? 23 जून को. द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल विडोज डे वाज ऑब्जर्व बाय द लोआम्बा फाउंडेशन बैक इन 2005. It was on June 23, 1954 when the founder's mother Srimati Pushpavati Lumba lost her husband. As the foundation used the same day to raise awareness about widows all around the world who suffer and live in poverty. International Widows Day was established by the UN on 21st December 2010. So UN ने इसको फाइनली एस्टेब्लिश किया 2010 को. ठीक है, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व हुआ 2005 को, established by UN on 21st December 2010 को, to highlight the social, economic, health and other problems endured by widows in the societies. Theme for 2023 is Innovation and Technology for Gender Equality. ठीक है, तो क्वेश्चंस काफी सिंपल आएगा, इससे आने से भी चांसेस कम ही है. इंटरनेशनल विडोज डे 2023 कब सेलिब्रेट होता है? 23 जून को. फर्स्ट टाइम कब हुआ था? 2005 को. किसने एस्टेब्लिश किया? यूनाइटेड नेशंस ने. कब एस्टेब्लिश हुआ? 2010 को, 21 दिसंबर 2010. थीम क्या है 2023 का? इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे, इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2023. 23rd June. Olympic Day is celebrated on 23rd June every year, and this day commemorates the founding of the IOC in the year 1894 by Baron Pierre de Coubertin. हम लोगों ने कल के दिन बात किया था कि IOC जो है उसको फाउंड किया था पियर डी कोबर्टिन ने. ठीक है, in the year 1894. IOC was founded at Sorbonne in Paris, where Pierre de Coubertin led the revival of the ancient Olympic Games on 23rd June 1894. The IOC has been responsible for running the modern Olympic Games since the first edition in Athens in 1896. Olympic Games जो है वो स्टार्ट हुआ था एथेंस में in 1896. वेरी इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन. ठीक है, idea for a day celebrating the Olympics was floated in 1947 at the 41st IOC session in Stockholm by Czech delegate Dr. Joseph Beuys. The first ever Olympic Day was celebrated on 23rd June 1948. तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. 23rd June 1948 को फर्स्ट टाइम सेलिब्रेशन हुआ था. थीम फॉर 2023 is Let's Move. ठीक है, the theme is a part of the global campaign by the same name led by Olympians and created in collaboration with the WHO with an aim to make time every day for movement for better health. So Let's Move campaign भी एक ऑर्गेनाइज हो रहा है इंटरनेशनल ओलंपिक डे के दिन. ठीक है, थीम तो लेट्स मूव है ही, कैंपेन भी लेट्स मूव है. इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैंपेन्स वर रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द IOC. ठीक है, लेट्स मूव कैंपेन. हमको क्या क्या ध्यान में रखना है यहाँ से? एक चीज तो है कि ओलंपिक डे सेलिब्रेट होता है 23 जून को. कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1948 को. ठीक है, एंड जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन एक आ सकता है कि फर्स्ट टाइम ओलंपिक गेम्स कहाँ पे हुआ था? एथेंस इन 1896. एंड इस साल IOC डे का कैंपेन क्या था? लेट्स मूव कैंपेन. ठीक है, थीम भी लेट्स मूव था. चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे.
Prime Minister Narendra Modi signed the Artemis Accords during his state visit to the United States. So आपको पता ही होगा पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो अभी यूएस विजिट करेंगे, उसके बाद वो इजिप्ट जाएंगे, ठीक है। सो यूएस में उन्होंने आर्टेमिस अकॉर्ड साइन कर दिया है। सो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा तो सेलिब्रेट किया ही है, अभी आर्टेमिस अकॉर्ड्स भी, मतलब मैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बोल रहा हूँ। सो आर्टेमिस अकॉर्ड्स भी उन्होंने साइन किया है, जो कि हेल्प करेगा इंडिया को यूएस के साथ कोऑर्डिनेट करने में इन द ग्लोबल स्पेस सेक्टर, ठीक है, स्पेस में जो भी डेवलपमेंट्स है, एज वेल एज लूनर एक्सप्लोरेशन, ठीक है, मतलब चांद में जाने के लिए जो भी डेवलपमेंट्स किया जाएगा। The accords initiated by NASA and the US Department of State provide a net framework for collaboration in civil space exploration and use, with a focus on returning humans to the moon and expanding space exploration to Mars and beyond. ठीक है, हमको क्या ध्यान में रखना है, आर्टेमिस अकॉर्ड्स किसने साइन किया रिसेंटली, इंडिया ने विथ यूएस। The space agencies of both countries, NASA and ISRO, have agreed on a joint space mission in 2024. So, as per this Artemis Accord, NASA and ISRO ने भी एक joint agreement sign कर दिया है for a space mission in 2024. ठीक है, Artemis Accords built upon the foundation of the Outer Space Treaty of 1967, constitute a comprehensive framework of guidelines that aim to govern the exploration and utilization of space in the modern era. While not legally binding, these principles serve as a roadmap for international collaboration, civil space endeavors. ओके, सो बेसिकली ये एक आउटलाइन डॉक्यूमेंट है या एक गाइडलाइन डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आर्टेमिस अकॉर्ड्स, ताकि स्पेस एक्सप्लोरेशन में क्या क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसको हाईलाइट करता है। अर्लियर दिस वीक इक्वेटर बिकेम द 26th नेशन टू ज्वाइन द आर्टेमिस अकॉर्ड्स। सो इक्वेटर ने इसी हफ्ते बिगिनिंग में ज्वाइन कर लिया था आर्टेमिस अकॉर्ड। सो इक्वेटर बिकेम द 26th नेशन। सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इक्वेडर जो है बन चुकी है। सो 26th नेशन टू ज्वाइन द आर्टेमिस अकॉर्ड्स इज इक्वेडर, ठीक है। 27th नेशन इज इंडिया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। ए टोटल ऑफ 27 कंट्रीज एंड 1 टेरिटरी। So a total of 27 countries and 1 territory have signed the accords, including 10 in Europe, 8 in Asia, 3 in North America, 2 in Oceania, 2 in Africa, 2 in South America. Okay, so अभी तक टोटल 27 कंट्री ने ये आर्टेमिस अकॉर्ड साइन कर दिया है। The accords were signed on 13th October 2020 by representatives of national space agencies of 8 countries: Australia, Canada, Italy, Japan, Luxembourg, UAE, UK and US। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल फैक्ट है कि 13 अक्टूबर 2020 में 8 कंट्रीज ने इस अकॉर्ड को साइन किया था, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ये अकॉर्ड कब बना था, 13 अक्टूबर 2020, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। Fitch Ratings raised its forecast for Indian economic growth to 6.3% for the current fiscal year 2023-24 from 6% it had predicted previously. So 6.3% हो गया है for 2023-24, 2024-25 and 25-26 के लिए उसने प्रेडिक्ट किया है 6.5%, ठीक है। The growth forecast changed because of a stronger outrun in the first quarter and near-term momentum in financial year 2023. The growth forecast compares with a 7.2% GDP expansion. The economy had a growth of 9.5% in financial year 22. Anyway, हमको क्या ध्यान में रखना है कि according to Fitch Ratings, the GDP growth rate is estimated at 6.3% for financial year 2023-24, 2024-25 and 25-26 के लिए it would be 6.5% for both the years, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। अलीबाबा अपॉइंटेड जोसेफ साई एस चेयरमैन, एडीयू एस सीईओ ऑफ $240 billion अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग्स। सो जोसेफ साई, ये है जोसेफ साई, एंड इनको बना दिया गया है चेयरमैन ऑफ अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग्स, एंड एडीयू को बना दिया गया सीईओ ऑफ अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग्स, ठीक है। तो जोसेफ साई जो थे वो पहले एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन थे, एंड एडीयू जो थे वो चेयरमैन ऑफ अलीबाबा स्पोर्ट टोबाओ एंड टीमॉल ऑनलाइन कॉमर्स डिविजन, ठीक है। एनीवे, हमको क्या ध्यान में रखना है, अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग का चेयरमैन कौन है, जोसेफ साई, एंड सीईओ कौन है, एडीयू। वैसे मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आने का चांसेस है, बट एनीवे हम ध्यान में रखेंगे, सब तरीके के अपॉइंटमेंट्स हम ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे।
ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ब्रिक्स सीसीआई अपॉइंटेड रूबी सिन्हा। सो ये है रूबी सिन्हा। सो ब्रिक्स सीसीआई ने अपॉइंट कर दिया है रूबी सिन्हा को, ठीक है, एज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स सीसीआई वुमेन्स वर्टिकल डब्ल्यूई। सो ब्रिक्स सीसीआई विमेंस वर्टिकल के अभी प्रेसिडेंट कौन है? रूबी सिन्हा। पहले कौन थे? पहले थे शबाना नसीम, ठीक है, जिनको अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ब्रिक्स सीसीआई बना दिया गया है, ठीक है, एंड चीफ पेट्रोन ऑफ ब्रिक्स सीसीआई डब्ल्यू। अच्छा, रूबी सिन्हा जो है वो फाउंडर ऑफ शी एट वर्क है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन कैसा आ सकता है? क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स सीसीआई विमेंस वर्टिकल? रूबी सिन्हा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ब्रिक्स सीसीआई? शबाना नसीम, ठीक है। एंड रिसेंटली रूबी सिन्हा वाज अपॉइंटेड एज द president of BRICS CCI Women's Vertical, who is also the founder of which of the following organization? She at Work, ठीक है। ब्रिक्स सीसीआई जो है उसको फाउंड किया गया था 2012 में, 2012। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इंडिया डिफीटेड बांग्लादेश एट द अंडर 23 विमेन्स T20 ACC इमर्जिंग एशिया कप 2023 टाइटल हेल्ड इन हांगकांग, ठीक है। सो अंडर 23 विमेन्स T20 ACC इमर्जिंग एशिया कप 2023 टाइटल में इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया है। और ये टाइटल कहाँ पे हुआ था? ये इवेंट कहाँ पे हुआ था? हांगकांग में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। Mahindra started the delivery of India's first armored light specialist vehicle. The Armado is designed, developed, and built in India for the armed forces. The Armado is a light armored specialist vehicle built for use by military and defense forces. The armored light specialist vehicle offers ballistic protection up to B7 10x level 2. Anyway, हमको क्या ध्यान में रखना है? सो ये Armado है। सो ये व्हीकल जो है, तो ये इंडिया का फर्स्ट आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल है जिसको बना दिया है महिंद्रा ने, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज डेवलप द फर्स्ट आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल ऑफ इंडिया, ठीक है, महिंद्रा। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। 2023 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स वर अनाउंस्ड इन द एयर एंड स्पेस म्यूजियम एट द पेरिस एयर शो। Regarded as the Oscars of the aviation industry, World Airline Awards began in 1980. So ऑस्कर्स ऑफ एविएशन इंडस्ट्री बोला जाता है स्काई ट्रैक्स के वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स को, ठीक है। इसको इंस्टीट्यूट किया गया था कब? 1999। सिंगापुर एयरलाइंस वाज अवार्डेड द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइन। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइंस वे अवार्डेड द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइन एट द 2023 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स? सिंगापुर एयरलाइंस। तो ये उनका 5th टाइटल है, ठीक है। सिंगापुर एयरलाइंस वाज फॉलोड बाय कतार एयरवेज एंड उसके बाद ANA, ऑल निपॉन एयरवेज, एमिरेट्स एंड जापान एयरलाइंस। एनीवे, हमको क्या ध्यान में रखना है? सिंगापुर एयरलाइंस को टॉप मिला है वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइन कैटेगरी में, ठीक है। इसको सिंगापुर एयरलाइंस को और भी मिला है अवार्ड्स, फर्स्ट क्लास ट्रेवल अवार्ड्स मिला है, जैसे कि वर्ल्ड्स बेस्ट फर्स्ट क्लास, वर्ल्ड्स बेस्ट फर्स्ट क्लास सीट, वर्ल्ड्स बेस्ट फर्स्ट क्लास कॉम्फर्ट एमिनिटीज, ठीक है। कतार एयरवेज को मिला है बिजनेस क्लास में, जैसे वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस क्लास अवार्ड, ठीक है, वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस क्लास सीट, वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस क्लास लाउंज। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइंस दिस won the first class travel awards at the Skytrax World Airline Award, सिंगापुर एयरलाइंस, ठीक है। या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइंस won the फर्स्ट क्लास या फिर वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस क्लास अवार्ड, ठीक है, कतर एयरवेज। स्टार एलायंस won द टाइटल ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइन अलायंस। तो स्टार एलायंस को मिल गया है क्या टाइटल? वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइन अलायंस, ठीक है। While Indigo won the best low cost airline in India and South Asia अवार्ड। तो इंडिको जो है इंडियन एयरलाइन, इंडिया से एयरलाइन जो टॉप की कंपनी है, ठीक है, उसको मिल गया है बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन इन इंडियन साउथ एशिया अवार्ड। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकता है। एक 3 क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस कर लिया। इस चौथे वाले पॉइंट का क्वेश्चन कैसा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइंस वेर अवार्डेड द लो कॉस्ट एयरलाइन इन इंडियन साउथ एशिया अवार्ड एट द स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स? इंडिगो, ठीक है। अच्छा, एक नया कैटेगरी भी इंक्लूड किया गया है, वर्ल्ड्स मोस्ट फैमिली फ्रेंडली एयरलाइन, जो मिल गया है एयर कनाडा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान में रखिएगा।
चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द करंट स्टेट ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम्स वर्ल्ड वाइड। ओके, तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट रिलीज हो गया है। Silicon Valley, New York City and London maintain their top position in the global startup ecosystem ranking. So Silicon Valley ने टॉप किया है, सेकंड आया है न्यूयॉर्क सिटी, थर्ड आया है लंदन। ठीक है, इंडिया became the third largest startup ecosystem in the world after the US and China. So इंडिया जो है एज ए कंट्री थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है आफ्टर यूएस एंड चाइना। तो यूएस टॉप में है, सेकंड में चाइना। इंडियन इकोसिस्टम कंटिन्यू टू राइज विद मुंबई लीडिंग द वे बाय मूविंग अप 5 प्लेसेस टू 31। सो मुंबई जो है उसको रैंक मिला है 31, बेंगलुरु जो है उसको रैंक मिला है 20 एंड दिल्ली जो है उसको रैंक मिला है 24। सो ये रैंकिंग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज टॉप द स्टार्टअप कल्चर द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 इन इंडिया। सो टॉप में आया है बेंगलोर बेसिकली। ठीक है, एंड ओवरऑल इंडिया जो है उसको थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम कंट्री है। ठीक है, तो ये एक रैंकिंग का वो था, लिस्ट था। सो देखिए ईयर ऑन ईयर कैसे कौन सा सिटी मेंटेन किया है अपने आप को। ठीक है, सिलिकॉन वैली 2019 से टॉप में है, लंदन भी 2019 से सेकंड में है, बट न्यूयॉर्क सिटी जो है वो देखिए पहले 2019 में उसका पोजीशन थोड़ा नीचे था, बट अभी वो नियरली लंदन के करीब पहुंच गया है। ठीक है, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, न्यूयॉर्क सिटी जो है वो सेकंड में है, लंदन जो है वो थर्ड में है। सो लंदन जो है वो न्यूयॉर्क सिटी के करीब पहुंच गया है। ठीक है, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है लंदन में। बाकी अगर आप देखें बेजिंग जो है वो थोड़ा सा नीचे जा चुका है, बॉस्टन जो है वो बेजिंग के ऊपर आ रहा है, लॉस एंजलिस सेकेंड 6 पोजीशन में था वैसे ही मेंटेन किया है। ठीक है, शंघाई जो है उसने भी मेंटेन किया है, टेल अवीव जो है उसने वो थोड़ा नीचे आ गया है। और बाकी नीचे तो पूरा मकड़ी का जाल बना हुआ है, सो इसको नहीं देखते हैं। ठीक है, तो वीडियो का लेंथ नहीं बढ़ाते हैं। आपको ध्यान में रखना है सिलिकॉन वैली जो है वो टॉप किया है, बस हो जाएगा उससे। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ टॉप कंट्री विद LEED लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिजाइन जीरो ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स outperforming the United States of America and China according to the US Green Building Council and Green Business Certification। तो इंडिया ने टॉप कर दिया है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिजाइन जीरो ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सो यूएस एंड चाइना जो है वो सेकंड एंड थर्ड में आई है। ओके, टॉप किया है इंडिया ने लीड सर्टिफिकेशन में। लीड जीरो रिकॉग्नाइजेस प्रोजेक्ट्स दैट हैव रीच्ड नेट जीरो और नेट पॉजिटिव स्टेटस इन द कैटेगरीज ऑफ कार्बन, एनर्जी, वाटर एंड वेस्ट। तो आपको पता ही होगा कार्बन एमिशंस, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट रिसाइकलिंग, ये सब लेके काफ़ी कुछ अभी चल रहा है। सो इंडिया का जो ओवरऑल लेट्स से एक्शनेबिलिटी है उसको, मतलब ये सर्टिफिकेशन से क्या पता चलता है कि इंडिया उसको अचीव कर पा रही है। ठीक है, वो कर रही है, वो जो उसका गोल है वो अचीव कर रही है, तो उसकी वजह से ये सर्टिफिकेशन उसको मिल गया है। ठीक है, नेट जीरो refers to a state in which greenhouse gases going into the atmosphere are balanced by removal from the atmosphere. The term net zero is important because for CO2 at least this is the state at which global warming stops. Anyway, ये उतना important कुछ नहीं है यहाँ पे। According to GBCS findings, out of 150 LED zero certified projects, India has 45% or 73 such projects with Haryana and Tamil Nadu leading the race in certification. अच्छा, तो हरियाणा एंड तमिलनाडु जो है ये दोनों स्टेट्स में सबसे ज्यादा लीड का सर्टिफिकेशन है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। India's DLF group is the leader globally in total LEED zero certification with 45 certification for its projects. So DLF group, so states में हरियाणा एंड तमिलनाडु लीड है, ऑर्गेनाइजेशंस में DLF ग्रुप लीड में है, फॉलोड बाय ITC ग्रुप। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। LEED Zero has 4 categories which recognize net zero status in carbon, energy, water and waste over a period of 12 months. तो ये एक साल के अंतर्गत इस चीज को ट्रैक किया जाता है। ठीक है, projects go through a verification and review process by GBCI and are awarded points that correspond to a level of LEED certification, certified silver, gold and platinum। ठीक है, anyway ये उतना important नहीं है, हमको ध्यान में रखना है पहला टॉप पॉइंट कि लीड सर्टिफिकेशन में, लीड जीरो सर्टिफिकेशन में टॉप किया इंडिया ने,
एंड सबसे आगे स्टेट्स कौन है लीड जीरो सर्टिफिकेशन में? हरियाणा, तमिलनाडु। कंपनीज कौन है? डीएलएफ ग्रुप फॉलोड बाय आईटीसी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। SpaceX सक्सेसफुली डिप्लॉयड इंडोनेशिया's न्यू कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट कॉल्ड द सत्रिया 1। सत्रिया का फुल फॉर्म क्या है? सैटेलाइट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। तो सत्रिया 1 कौन से कंट्री का सैटेलाइट है? इंडोनेशिया का। किसने डिप्लॉय किया है? SpaceX ने। फुल फॉर्म क्या है? सैटेलाइट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। डॉक्टर सुमित सेठ अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू पनामा। तो ये है डॉक्टर सुमित सेठ। वन लाइनर इवेंट है, ध्यान में रखिएगा। एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू पनामा अभी नेक्स्ट कौन बन गए हैं? सुमित सेठ। ठीक है, तो लास्ट का आज का लास्ट इवेंट देख लेते हैं। द बिहू फेस्टिवल इज ए लेसर नोन ट्राइबल सेलिब्रेशन ऑफ द तांगसा ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सो बिहू फेस्टिवल किस ट्राइब के साथ एसोसिएटेड है? तांगसा ट्राइब। कौन से स्टेट के साथ एसोसिएटेड है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तांगसा ट्राइब a collective of sub-tribes each with their distinct dialect and customs reside primarily in the Changlong district of Arunachal Pradesh and across the border in the Sangao region of Myanmar. Bihuku, translating to Paddy Transplantation Festival, marks the beginning of agricultural season. Okay, so Bihuku का मतलब है beginning of agricultural season. ठीक है, या Paddy Transplantation Festival and marks the beginning of agricultural season. क्वेश्चन कैसे आ सकता है? बिहुको फेस्टिवल कौन से ट्राइब के साथ एसोसिएटेड है? तांगसा ट्राइब। कौन से स्टेट के साथ एसोसिएटेड है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो चलिए आज के कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? द यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 23rd June. इंटरनेशनल विडोज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 23rd June. इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 23rd June. सो तीनों के तीनों इवेंट 23rd June में। ठीक है, Who among the following was recently appointed as the president of BRICS CCIWE? Ruby Sinha. Who among the which of the following countries recently became the 27th signatory of the Artemis Accord as a part of global space cooperation and exploration with US? India. Who among the following was recently appointed as the executive director of BRICS CCI? Shabana Nasmin. Which of the following countries recently became the 26th signatory of Artemis Accords? Ecuador. According to Fitch Ratings, Indian GDP is poised to grow at dash for financial year 2023-24, 6.3%. 6.5% है 2425 2526. Who among the following was recently appointed as the chairman of Alibaba Group Holdings? Joseph Tsai. Which of the following countries topped the LEED Zero Green Building Project certification? India. The Bihuko festival is associated with which of the following tribes of Arunachal Pradesh? Tangsa. The recently launched Satria 1 telecommunication satellite was deployed by which of the following countries? Indonesia. Which of the following airlines won the world's best airline award at the 2023 Skytrax World Airline Awards? Singapore Airlines. Which of the following airlines won the low cost airline in India and South Asia award at the 2023 Skytrax World Airline Awards? Indigo. Which of the following airlines won the world's most family friendly airline award at the 2023 Skytrax World Airline Awards? Air Canada. The Armado is a light armored specialist vehicle built for use by Indian military and defense forces by which of the following companies? Mahindra. Who among the following top the global startup ecosystem report 2023? Silicon Valley. Among the Indian cities, which of the following cities secured 20th rank at the global startup ecosystem report 2023? Bangalore. न्यू दिल्ली को मिला है 24, मुंबई को मिला है 31. Who among the following won the under 23 women's T20 ACC Emerging Asia Cup 2023? India. हांगकांग में हुआ था ये इवेंट. ठीक है, Who among the following has been recently appointed as the next ambassador of India to Panama? डॉक्टर सुमित सेठ. तो गाइस आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले एपिसोड में जो कि होगा संडे को. ठीक है, वीकेंड फोकस का एपिसोड आएगा संडे को, जिसमें हम कवर करेंगे जो भी इवेंट्स हमसे मिस हो चुके हैं. ठीक है, गए हुए हफ्तों में, तो उन सब को हम कवर कर लेंगे. अच्छा, और एक चीज़ मैं बता दूं, मैंने आपके लिए मे रिकैप्स शुरू किया है. तो एक मैंने बुक्स का वो डाला था, शॉर्ट्स डाला था. दूसरा मैंने डाला था जो डेज ऑफ द मंथ होते हैं मे के. ठीक है, विथ थीम्स. तो आप वो शॉर्ट्स थोड़ा सा देख सकते हैं. वैसे आपको
देख के मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा कि आपको मतलब आपके लिए वो विजिबिलिटी ठीक है कि नहीं, तो नहीं तो मुझे थोड़ा सा डिज़ाइन में अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो काइंडली कमेंट पे मुझे बताइएगा। और रिगार्डिंग ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड चैनल को, एंड अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कीजिएगा, ठीक है। कुछ भी गलत लगे, कुछ भी लगे कि मैंने गलत बोला है, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट पे बताइएगा ताकि मैं करेक्ट कर पाऊँ। बिकॉज क्या होता है कि मैं डिफरेंट न्यूज़ वेबसाइट्स देख के आपके लिए कोडेड करके लाता हूँ इन्फॉर्मेशन, तो ऐसा हो सकता है कि न्यूज़ वेबसाइट में ही गलत है, तो इसीलिए शायद यहाँ पे मैंने गलत डाला है, ठीक है। तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा बनता है कि मुझे आप एरर करेक्ट करवाएं, ठीक है। और मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं प्रॉपरली सब कुछ चेक करके आपके पास लेके आऊँ, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। गुड नाइट एंड थैंक यू।